Hallelujah. खुदावंद का वचन हमारी जिंदगी के लिए एक दीपक है, रोशनी है, बल है, मजबूती है, ताकत है, हौसला है, क्योंकि यही वचन हमें चलना सिखाता, बोलना सिखाता His है। word is a lamp for us that gives us confidence, strength, boldness, because this is the only word that makes us or help us how to walk. कितने लोग आज खुश हैं कि परमेश्वर की हजूरी में आकर खुदावंद की कुव्वत से हम मामूर हो रहे हैं आज। How many of you happy that you came into the presence of God and you're being filled by the Lord? आप ये समझ जाएं कि परमेश्वर ने हमें उदास होने वाला आत्मा नहीं दिया, कमजोर होने वाला आत्मा God नहीं has दिया। not given us a spirit of being upset or being weak. अब खुदावंद ने हमें दलेरी वाला आत्मा दिया है। He has given us a spirit of strength. परमेश्वर का आत्मा बदलता नहीं है, God's spirit never changes. परमेश्वर का रूह कभी बदलता नहीं है, His spirit never changes. और परमेश्वर का आत्मा उतनी दलेरी, उतनी हौसले से हमारे जीवन में काम करता And है। the spirit of the Lord works with that boldness and confidence in our lives. I want to hear the loud voice of hallelujah. Hallelujah. जोर दे बोलो hallelujah. Hallelujah. कितने लोगों ने बैप्टिज्म लिया था कल? How many of you had baptism yesterday? Praise God. 2 of them is there. Yes, wonderful. This is one of the best moment in my life, like, when I see those happy faces, those victorious faces. Because the Bible talks about these victorious faces are meant to be happy. They needs to be happy because God is a powerful Check. God in our life. Hallelujah. That's why the Bible talks about every time, like, these people are the chosen and the victorious people. ये लोग जो हैं चुने हुए लोग हैं. जब ये परमेश्वर उन जिसको चुनता है, तो परमेश्वर अपने रीति से अद्भुत काम करता है। When God chooses somebody, He'd work in His own ways. कितने लोग जिम जाते हैं? How many of you go to gym? इसको विसल कम करें, इसकी विसल नहीं आनी चाहिए। Make sure that gain कम कर दो। Right. I was asking something. कितने लोग जिम जाते हैं? How many of you go to gym? दोस्तों कदे जिम नहीं गए कदे? Haven't you gone to the gym ever? कितने लोग जिम? How many of you have been to gym or went to gym or going to gym? देखिए जितने लोग जिम जाते हैं उनको ये पता है, उनको ये इस बारे में अच्छी तरह नॉलेज है Right. Let's stop it there now. Let's go for it. कितने लोग जब जिम जाते हैं उनको ये पता है कि जब वो वेट उठाते हैं तो उनकी बॉडी शेप में आती है, So they know when they lift up the weights, their body comes to shape. राइट? वो वेट उठाने से क्या हो जाता है, बॉडी में क्या आती है? So when they pick up the weight, their body. हाँ जी ब्रदर जी, ब्रदर किथे गए? Rajveer. ब्रदर राजवीर। हाँ जी, बोलो हालेलुया। Hallelujah. अगर आप जिम जाकर बॉडी के ऊपर वेट रखते हैं, उसको लिफ्ट करते हैं, तो आपकी बॉडी में एक शेप नजर आती है, आपकी ऊर्जा, आपकी ताकत बढ़ जाती है। So then your body changes and then your strength changes. अगर वचन इस बारे में बताता, जो आत्मिक तौर पर बोझ को लेता है, उस बोझ को, उस ताकत को अपने जीवन में लेता है, तो आत्मिक रीति से वो हमेशा खुशहाल रहता है। So if you pick up the things for the spirit, then in all the ways your spiritual life gets strengthened and he be happy. ये in that. समझ जाए कि ये वैसा वर्षा है, अगर आप बॉडी पर वेट उठाते हैं तो आपको अपनी बॉडी कहीं शेप में नजर आती है। अगर आप आत्मिक तौर पे बोझ लेने के लिए तैयार हैं, तो ये समझ जाए कि परमेश्वर के नाम में आप खुशहाल रहने वाले हो। So if you lift a weight and you have weight over your body which changes your outside body, the same way if you take weight of the spirit, you will have the joy of the Lord in your life. हाँ, कितने लोग हैं जो वो बोझ नहीं उठाना चाहते, बल्कि परमेश्वर के साथ वायदों को सुनना चाहते हैं, वायदों को लेना चाहते हैं, पर वो बोझ और वो क्रूस को उठाना नहीं चाहते So हैं। many people who do not want to pick up the weight of the Lord or the cross of the Lord, but they want everything else. Unless अगर आप अब उस बोझ को लेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में कोई आंसर, कोई उत्तर नहीं मिलने वाला If है। you do not lift up that weight, you will not have the answers from the Lord. सबड़ी से हालेलुया। Hallelujah. आप कोई ना कोई बोझ को लेकर आए हैं। You have come here with some kind of weight. आपका बोझ परमेश्वर देखता है। God is watching at your weight. परमेश्वर आपकी दुख को, उदासी को भी देख रहा है। God is looking how depressed you are, your sadness. पर परमेश्वर बताना चाहता कौन उस बोझ को उठाकर अपने परमेश्वर के पीछे चलता है और कहता है परमेश्वर ये बोझ मैं तेरे ऊपर डालने जा रहा But हूँ। God is one who is lifting that weight and following God. God says, I want to see that. The moment आप उस बोझ को अपने परमेश्वर के ऊपर डालेंगे, तो परमेश्वर आपको वो वाले गहरे भेद बताएगा जिसके लिए आप बनाए गए हो। And if you take the weight that the Lord wants to give to you, the spiritual weight, God wants to reveal His revelations to you. Oh, somebody say hallelujah. Hallelujah. आज हम एक बात सीखने जा रहे हैं कि जब रिजेक्शन होता है,
जब कोई किसी चीज पे हमें रुक जाते स्टॉप लग जाता है तो परमेश्वर की क्या प्लानिंग होती है So we're discussing tonight if there's a rejection in our life in some or the other way, what is the planning of God behind it? वचन में कलाम में लिखा है कि जब इग्नोरेंस की बात आती है जब कई बार परमेश्वर आपकी प्रार्थना को इग्नोर कर देता है So we often talk about ignorance, that many times God ignores our prayers. एक बात समझे अगर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को इग्नोर कर देता पर हमारा काम होता कि परमेश्वर इग्नोर करता है हम भी इग्नोर कर देते परमेश्वर को So what happens is if we know that God is ignoring our prayers, in turn of that we ignore God. इसमें नुकसान इंसान का ये परमेश्वर का कुछ नहीं जाता है So we lose everything as human beings. I'm God doesn't gonna lose. teach you why God ignored some people. मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर क्यों इग्नोर करते हैं कुछ आपको लोगों को. पता है जब एलिया परमेश्वर की हुजूरी में चल रहा था When Elijah was walking in the presence of the Lord, खुदावन ने उस एलिया को बहुत सारी चीजें सिखाई God taught Elijah many things. और एलिया को भरपूर किया And he filled Elijah एलिया को मजबूत किया and he gave strength to और एलिया Elijah. को इतनी तंदुरुस्ती के साथ आगे लेकर आया And he brought Elijah with such a strength. और वचन में साफ लिखा है एलिया अपने जीवन में कमजोर नहीं हुआ And Elijah did not weaken in his life. एलिया अपने जीवन में कभी उदास नहीं हुआ He was never saddened in his पर life. एलिया को ये पता था कि अगर परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है तो वो परमेश्वर की इग्नोरेंस में भी मेरी जीत है But he knows that if God is speaking to him in his ignorance, he has his victory. somebody say hallelujah Hallelujah. आपको पता है जब अलीशा उसके पीछे चल रहा था And when Elisha was following him, कभी कभी क्या होता है कि परमेश्वर आपको परखने के लिए आपको इग्नोर करते हैं many times what God does is just to test you, he ignores कई you. बार परमेश्वर आपके विश्वास को परखने के लिए आपकी प्रार्थना को इग्नोर करेंगे Many times God will ignore your prayers just to test you. आपको पता है जब एलिया के अंत के समय में जब वो खुदावंत के ऊपर उठाया जाना था तो एलीशा उसके पीछे पीछे चल रहा था And when God was lifting him up, Elisha was just following Elisha. और परमेश्वर ने एलिया के मन में डाला कि तू इस एलीशा को परखा जाए And God told Elijah to test Elisha, एलीशा को टेस्ट किया जाए to test Elisha. और ऐसी योजना परमेश्वर ने एलिया के मन में डाली And the same thing God put into Elijah's. एलिया एलीशा को कहने लगा अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है तू यहाँ से क्या निकल जा Then Elisha said, I don't need you. Elijah said to Elisha, I don't need you. You can go from here. somebody say hallelujah Hallelujah. जोर से बोलो hallelujah Hallelujah. अलीशा कहता है कि सारी उम्र मैं तेरे पीछे रहा हूं अब मौका है दोरा मसा पाने के लिए अब तू मुझे कह रहा है कि यहाँ से पीछे हो जा Now he might think that I'm after you for a long, long time, and when it's a time for me to get what you have, now you're telling me to go. समझ जाए अगर आप डटे रहेंगे अड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में बरकत पाएंगे आप Understand? When you stand, when you stay, you will receive the blessings of the अलीशा Lord. कहता मैं जाऊंगा नहीं Elisha said, I will not move. मैं यहाँ से मुंह नहीं फेरूंगा I will not turn my face. चाहे चाहे तू मुझे मना कर दे No matter if you say no to me, चाहे मेरा परमेश्वर मुझे क्यों ना मना कर दे if my Lord says no to me, चाहे मेरा परमेश्वर मुझे बरकत दे या ना दे if my God gives me blessing or पर not, मैं अपने विश्वास में अड़ा रहूंगा खड़ा रहूंगा I will stay and stand in my faith. जो अड़े रहेंगे खड़े रहेंगे वो गवाही भी If देंगे you यीशु मसीह के नाम stand में or stay, you will give the Oh, testimony of somebody the say Lord. hallelujah. Hallelujah. जोर से बोलो hallelujah. Hallelujah. आप समझ जाए कई बार आपको पास्टर इग्नोर करता है Many times the pastor ignores आप you, सेम डे से रिप्लाई करते हैं आप भी इग्नोर करना चले शुरू and हो then you जाते हैं started ignoring him. एलिया को एलीशा से कोई गिला नहीं था कोई शिकवा नहीं था Elijah had no problem with Elisha, पर एलिया को परमेश्वर ने बताया था इसे इग्नोर किया जाए but God told Elijah to ignore अगर Elisha. आप अपने विश्वास में अड़ जाएंगे अब खड़े रहेंगे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है If you stay in your faith and just stay there, hang on there, God is about to अगर use you. परमेश्वर आपके जीवन में वो अद्भुत काम करने जा रहा है God is able to do wonderful things in your life. अगर ये कहें परमेश्वर चाहे जो मर्जी हो जाए जो तेरा वायदा है मैं अपने जीवन में रखता हूं मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं And you say, Lord, I will not move from here. Whatever you have promised me, it will come. Oh, somebody say hallelujah. Hallelujah. ये बात समझ है कि आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देना चाहता है God wants to answer your prayer पर tonight. आज आपकी प्रार्थना को उत्तर इसलिए नहीं मिल रहा You are not getting answers just because परमेश्वर टेस्ट करना चाहता है God wants to test you. परमेश्वर परखना चाहता He है wants to test you. उसके कलाम में लिखा है कि धर्मी जन परखा जाता है His word says that a righteous man will be tested. जो जिन्होंने बैप्टिज्म हो चुके हैं आपका टेस्ट आज से शुरू होता The है people who have taken baptism, your tests have started already. जो अपना बोझ लेकर आए आज से टेस्ट शुरू होता है People who have brought their burdens, the test has begun already. चाहे आपको परमेश्वर आपको मना क्यों ना कर दे कि तेरे लिए होगा नहीं जो खड़ा रहेगा अड़ा रहेगा वो यीशु मसीह के नाम में जीत No हासिल matter करेगा God says it will not happen, if you stay, if you hang on there, it will happen. You will receive victory in the name आपको of अड़े Jesus. रहना है आपको खड़े रहना है You have to stay there no matter what. आपको रुकना नहीं है You don't have to stop there. रुकने से चीजें रुक जाती हैं When you stop, things stops. आपको वर्शिप ना करने से आपके जीवन में तबाही नजर आती है When you don't worship, you will see destruction in your life. और जोर से बोलो हालेलुया Hallelujah.
हमारी प्रार्थना का उत्तर मिले या ना मिले, हम शोक में भी खुशी मनाते हैं। If we receive the answers of a prayer, yes or no, even in sadness, we rejoice in हमारी the Lord. जीवन में कुछ चीजें पूरी हो या ना हो, परमेश्वर की जीत का ललकारा हम हमेशा गाते रहते हैं। In our life, there is something or not. In all the ways, we give victory to the Lord. चाहे परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे ना करे, वो फिर भी मेरा परमेश्वर रहता है। Rather, if God use me or not use me, He still stays my मैं God. अपने परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। And I am still hang on to my Lord. जिनकी ये प्रार्थना है, ये समझ जाए कि परमेश्वर आपके जीवन को बदलना And चाहता if you है। have such kind of prayers, God is about to change your life. आपको पता है कई बारी मांगने से चीजें नहीं मिलती, कई बार आपको चलना पड़ता है। Many times when you ask, you don't receive things, you have to walk. कई बार आपको मांगने से चीजें नहीं मिलेंगी, आपको चलने से आपके जीवन में चीजें पूरी होंगी। You may not get things when you ask for, but when you walk with God, you may get हमेशा आपको things. रोने की जरूरत नहीं You don't है। have to cry all the ये time. समझ, अगर आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता बन चुका, संबंध बन चुका है, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं है। If you have a relationship with the Lord, you don't even have to speak. बोलो हालेलुया। Hallelujah. मुझे पता है मेरी बेटी जो छोटी जोई है, When I talk about Zoe, जब उसको दूध पीना होता है and when she wants milk, तो उसकी मम्मी को पता होता है इसके दूध पीना है, her mother knows that she needs to drink milk. तो वो उसका वेट नहीं करती है। she don't वेट wait. नहीं करेगी कि रोती रहे जब तक मांगेगी तभी मैं दूंगी। She will not bear that. Let her cry as long as she wants, and then she gives it to पर her. परमेश्वर का कलाम भी यही बताता है The आपको, same thing the God word says. अगर आपका रिश्ता आपके परमेश्वर के साथ है, If you have the relationship with आपको your God, रोने की जरूरत नहीं है, you don't have to cry. आपको मांगने की जरूरत नहीं You don't पड़ेगी। have to beg. आपकी जरूरत के अनुसार परमेश्वर काम करना शुरू कर God देगा। will start doing His things according to आपकी your आप needs. जरूरतें जैसी बढ़ती जाएंगी, परमेश्वर आपकी जीवन में वो चीजों को मुहैया करता जाएगा। As big as your needs arises, the more God will do ये in your परमेश्वर life. का वायदा, परमेश्वर चाहता है कि तू अपने परमेश्वर के संबंध को बना। God wants you to have a relationship with Him, आज आपका संबंध परमेश्वर के नाम से बहुत सारे बंधन को तोड़ने जा रहा and है। your relationship with God is about to destroy and ओ finish जोर से so बोलो many things in your हालेलुया। life. Hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. आपको पता है अगर आप अपने परमेश्वर के संबंध में हैं, And if you are in the relationship with the Lord, आपको अपने बोझ को बताने की जरूरत भी नहीं you है, don't even have to tell your weight to nobody. आपको अपनी परेशानी की बताने की You जरूरत don't have भी to tell your trouble to नहीं। nobody. तो यही परमेश्वर आज भी हमें बताता है कि आज परमेश्वर कई लोगों को इग्नोर कर रहा है। And the same thing God is saying, that He's ignoring so many people. आज परमेश्वर कई अपने चुने हुए लोगों को इग्नोर कर रहा है। God is actually ignoring His own chosen ये people. समझ जाए कि परमेश्वर अगर अपने चुने हुए लोगों को इग्नोर कर रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। So you should understand why God is ignoring. अगर परमेश्वर ने ये कारण को अपनी जिंदगी के थ्रू बताया है उसने, And if God is telling it through His own life, इन लोगों की कोई हैसियत नहीं थी कि यीशु मसीह को स्वीकार कर सकें और यीशु मसीह को उसके घर से बाहर निकाल सकें। and people had not strength or courage to say no to Jesus or to take Him out of His house. यीशु मसीह ने अलाउ करवाया गया कि वो उसे अपने मुंह से इनकार भी कर सके और उसी समय अपने परमेश्वर को अपना भी सके। They were allowed by God not to say yes to Jesus and the same way to say no to Jesus. क्योंकि वचन में साफ लिखा है परमेश्वर अपनी प्लानिंग के अनुसार चलता है। God works by His plans. क्योंकि परमेश्वर को पता कि जिसके पास ना वाला आत्मा है, जो हमेशा ना करता रहता है, उसको ज्यादा हाथ दिखाने की जरूरत नहीं And है। God says people who say always no, you don't have to say yes to them. Somebody say hallelujah। Hallelujah. अगर कोई एक इंसान सिर्फ गीत गाना चाहता है, खुदावन उसके गीतों को बंद भी करेगा फिर। And if a person who only wants to sing and sing and sing, God will even shut your mouth. खुदावन कहेगा no, and now I want to use in different way also। अब मैं किसी और वे से तेरे को इस्तेमाल करना अगर चाहता एक हूँ. इंसान सिर्फ एक काम करना चाहता है तो परमेश्वर उसे उसी काम से रोक देगा उसे। And a person who wants to do one kind of thing, God will stop him or to क्यों do that परमेश्वर thing. उसे रोकता है? क्योंकि परमेश्वर उसको दूसरी जगह पर इस्तेमाल करवाना And चाहता the है। God will stop him because God wants to use him to other ways. जिस एरिया में आप स्टक हैं, The areas that you are stuck in, ये मत समझे कि वो परमेश्वर उस स्टकनेस को देख नहीं रहा है। don't see that God is not watching those people stuck. आप वहां पर स्टक इसलिए हैं The reason you are stuck क्योंकि there, परमेश्वर आपको वहां से निकलने के लिए कह रहा है। because God is telling you to move out. समझ जाए, परमेश्वर की आवाज को समझे, परमेश्वर की उत्तर को ले ले, परमेश्वर के प्लानिंग को समझे, आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं You पड़ेगी। have to understand God's planning. You don't have to beg Him. अब यही परमेश्वर आज अपने लोगों से बताना चाहता है। And the same God is trying to tell His आज people. वही परमेश्वर हमारे बीच में आके कहना चाहता है And कि the same God is coming in the चाहे midst तुम्हें of us. इग्नोरेंस क्यों ना मिल रही हो, No matter how much ignorance you चाहे get, तुम्हारे लिए बंद क्यों नहीं, तो हर रास्ते बंद क्यों ना maybe नजर all आते the हो, doors are closed for you. परमेश्वर उन बंद रास्तों में भी एक दूसरा रास्ता खोलने की In हिम्मत those रखता closed है। doors, God is able to open a new door. अगर आप विश्वास रखते हो, If you have faith. अब ये कहते हो मेरा अपने परमेश्वर के साथ संबंध है, आपको कोई बंद दरवाजा रोक नहीं पाएगा। And it says if you have a relationship with God, no closed door can stop you. आपको कोई बंद दरवाजा, आपको कोई इंसान रोक नहीं पाएगा। No man can stop you, no closed door can stop you. Somebody say hallelujah। Hallelujah.
आप जीती हुई कौम है यीशु मसीह You के are, नाम में। you are those people who are victorious. अगर आप जीती हुई कौम है तो समझ जाएं कि परमेश्वर के एक प्लान को समझ जाएं आज। So you should understand the plan of the Lord. आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। I want to tell you something. कई बारी चीजें परमेश्वर बोलता है कि हमें कई चीजों को वो रोक देता है। Many times God says and God stops things. आपको पता है बेनहिन जॉन से एक बहुत अच्छे एक इवेंजलिस्ट और प्रॉफिट रहे हैं। You know Benny Hinn as an evangelist. उनके एक सन इन लॉ है। He has a son-in-law. He had a very habit He of ha- playing golf. उनके पास एक हैबिट है गोल्फ खेलने की. उनकी एक बहुत बड़ी आदत थी कि वो हमेशा गोल्फ पे अपना सारा टाइम स्पेंड करते And थे। he spent all of his time on playing golf. परमेश्वर ने उससे बातचीत की। God spoke to him. परमेश्वर ने कहा कि तुझे अब गोल्फ खेलना नहीं, अपने गोल्फ पे अपना टाइम स्पेंड करना नहीं। And God says you don't have to spend your time or to play golf. मैं जब वो टेस्टिमनी पढ़ रहा था And when I was reading that तो testimony, उस टेस्टिमनी में साफ लिखा था, and the testimony said, अगर परमेश्वर किसी चीज को आपके जीवन में रोक देते हैं and if God stops something in your life, तो परमेश्वर ये नहीं कि वो परमेश्वर उसे नफरत करते हैं, doesn't mean that God is angry at us. पर परमेश्वर तुझे किसी और जगह पर इस्तेमाल करना चाहते, जितना समय तो उस काम के लिए दे रहा है, परमेश्वर तुझे उससे भी ज्यादा बेहतरीन काम से तेरे को मामूर करना चाहते The हैं। work that you're doing there, God even wants to bless you with more work. बोलो हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि आदत होती है कि यहाँ दी आदत होती है टीवी देखने दी जावा। Many people just know or watch TV all the time. जब प्ले स्टेशन 3 आया था और मैं और आशीष ने हमने प्ले स्टेशन गेम को बड़ा प्रमोट किया उस वक्त। So when PlayStation 3 came, we both promoted that a lot. हमने एक हफ्ता प्ले स्टेशन खेला। We played for that for 1 week. We know each other कि हमने दोनों ने बैठ के हमने कुर्सियां लेकर आए, हमने कहा let's play प्ले स्टेशन। And we bought special chairs for that एक just to play हफ्ते के it. बाद हमें एक बात समझ आई, And after 1 week we understood ये एंटरटेनमेंट नहीं है, this is not an ये entertainment. तो बंधन है, This is a trap. ये तो इतना बड़ा ट्रैप हो रहा है, And it's such a big ये trap तो हमारा सारा टाइम खा रहा है। that our time has been consumed by that. और हम दोनों ने वो प्ले स्टेशन बाहर फेंकी पहले। And we had to throw that out. हमने कहा हमें प्ले स्टेशन नहीं चाहिए। We don't need that PlayStation. somebody say hallelujah। Hallelujah. और जोर दी बोलो। Hallelujah. कई बार कई लोगों को टीवी देखने की बहुत ज्यादा आदत होती है, टीवी देखते रहते And there हैं। are people who just love to watch TV टीवी all the देखना time. बुरा नहीं है, It's not bad to अगर watch. परमेश्वर का आत्मा आपको बोले तो फिर वो गुनाह है। But if God say not to watch it and then you do it, then it's a mistake. अगर परमेश्वर का आत्मा आपको किसी चीज को बारे में रोक दे फिर वो आपके लिए गलत है। And if God's Spirit stops you, then it is wrong. आपको बाहर घूमना कोई शॉपिंग करना कोई गलत बात नहीं है। Shopping is not bad. कई लोग Roaming around शॉपिंग is not करते हैं bad. और उनकी आदत बनी हुई शॉपिंग And की। the people who shop all the time, and that's their problem. शॉपिंग करते कहीं शॉपिंग नहीं करते, वे घूमते रहते हैं। And they don't even do shopping, but they just roam around here and कईयों there. को घूमने का शौक है, And there are people who will love to do that. एवरीथिंग करते रहेंगे। And they will keep on doing all these things. समझ जाए, अगर परमेश्वर का आत्मा आपको ना बोल रहा है तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी अड़चन बनने वाली, अगर उसकी बात को आप नहीं And मानोगे। if God's Spirit says to you, know about it, and if you still do it, that becomes a problem. आज in एक your बात life. को सीखने जा रहे हैं हम। You're about to understand what. जल्दी से खुदावंद की कलाम में चलेंगे, उत्पत्ति की किताब उसकी 22 उसकी 12 में पढ़ेंगे। Genesis 22:12. अब जब उत्पत्ति की किताब में हम ये पढ़ते जा रहे हैं, When we understand or read in इसमें Genesis 22:12, परमेश्वर ने एक बहुत गहरी बात बोली है। God speaks out of something very deep. आपको पता है अब्राहम अपने जीवन में हमेशा वफादारी के साथ चला। Abraham has been faithful in his life. उसे for ये God. पता था कि मेरा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, एक संबंध है। He knew that he had a relationship with God. Somebody से बोलो हालेलुया। Hallelujah. अब ये समझ है कि हर एक इंसान के लिए टेस्ट क्यों रखा गया है। And you should understand why there is a test for every one of us. अगर परमेश्वर का आत्मा आपको किसी चीज के बारे में रोक रहा है, आपको तोड़ रहा है, आपको स्टॉप लगा रहा है, immediately act on it, otherwise you will be in a very big problem. If God's Spirit stops you to do something, and if you don't do it immediately or put into an end to it, you are becoming Let me in a tell problem. you, if God's Spirit is telling you not to use much of your Facebook, stop it. अगर परमेश्वर कहता है अपना Facebook ज़्यादा मस्त इस्तेमाल करो तो बंद करें देखना. अगर आपको WhatsApp की प्रॉब्लम है, इंटरनेट से प्रॉब्लम है, कुछ ही कहीं चीज से परमेश्वर को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसे बंद करो। So if you have a problem with WhatsApp or internet, and if God is upset about it for you use it, stop it. जोर से बोलो, Hallelujah. जोर से बोलो। Hallelujah. हमें पसंद बहुत था प्ले स्टेशन खेलना। We all love to play हम PlayStation. दोनों को बड़ा पसंद आ रहा था। We both liked it a lot. 2 दिन तो हमारे ऐसे थे कि हमें लगती थी अरे नई एनर्जी आ गई हमारे And अंदर। for first 2 days it was like we got something new in us, new energy in us. मैं क्या मनाए कि एनर्जी नुर्जी नहीं हैगी, And I thought it's not energy, ये तो बहुत बड़ा ट्रैप है। it's a trap. हमें लगता है शाम जब होती थी दुआ करने के बाद जल्दी जल्दी प्ले स्टेशन खेल लो। In the evening after prayer, let's just open PlayStation and play. बोलो Hallelujah. जोर दी। Hallelujah.
मैं कई लोग देखे सवेरे हजे ना मुंह भी नहीं धोता ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ And there are ਪਹਿਲਾਂ people there who haven't even washed their face when they wake up in the morning, and the first thing that they do or check is उनको Facebook. ये है कि मेरे फेसबुक का स्टेटस क्या है And आज they just want to see what is the status of पहले the मेरा Facebook. मैसेज क्या है आज ट्वीट किसने किया है मुझे Who first से tweeted पहले? me first? Who messaged me You know, first? sometimes you are so much indulged into those things. कभी कभी आप बहुत ज्यादा अंदर उसको घुल मिल जाते हैं. Though you are chosen by a living God, आप परमेश्वर के चुने हुए बच्चे हैं, but still God wants you to stop something. लेकिन परमेश्वर कहते हैं इन चीजों को रोक दे, Because God wants to use you in a mighty way. क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत एक बड़े वे में यूज करना बोलो चाहता सारे हालेलुया. है. Hallelujah. कितने लोग मुझे मेरी वाइफ को बोलते हैं कि आप अपने लिए टाइम कब निकालते हो? People speak to my wife and ask her, when do you take time for you? कहते हैं आप अपने लिए आपका टाइम कब होता है? Where you have time for you? मैं उनको यही बोलता हूँ यही मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर होता है जब मैं बंदगी करता हूँ. I told them praying to the Lord is my stress buster. सारे बोलो Hallelujah. और जोर दी. Hallelujah. ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਓ ਯਹੋਵਾ ਦੇ. David said, I'm happy when they say, let's go to the house of the Lord. ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਉਦਾਸ ਬੈਠੇ ਨੇ? How many people are upset tonight? ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸਾਰੇ. You're all listening. ਬੋਲੋ जोर दी. ब्रदर जी आज काफी देर बाद आए. ब्रदर जी जोर दी बोलो हालेलुया. देखिए खुदावंद के कलाम में उत्पत्ति 22 उसकी 12 में पढ़ने जा रहे हैं हम. Genesis 22:12. It says like this कि जब अब्राहम अपने जीवन में वफादारी के साथ चल रहा था, When Abraham was walking with God in faithfulness, खुदावंद ने वायदा किया था कि तेरी संतान में से मैं एक ऐसा वंश पैदा करूंगा और संतान के संतान तेरी जनरेशन में से एक ऐसी बरकत पैदा करूंगा जिसे कोई भी हरा नहीं सकता और कोई भी नाश नहीं हो पाएगा. he told him that from your generation I will bring somebody that will never be destroyed and will always be अब्राहम को victorious. ये पता था कि जो परमेश्वर ने मुझसे वायदा कर दिया है वो पूरा जरूर होगा. And Abraham said that whatever Lord has said to me, it will come to pass. अब्राहम बड़ी दलेरी के साथ बड़ी खुशी के साथ और बड़ी उमंग के साथ परमेश्वर के बीच में चल रहा था. And he was in faithfulness walking with the Lord. एक बार परमेश्वर का आत्मा ने उससे बातचीत की And once God's Spirit spoke to और him, परमेश्वर अब उसके लिए एक टेस्ट बना के लेकर आया and है. God has a test for him. बोलो सारे हालेलुया. Hallelujah. जो टेस्ट में पास होता है वो प्रमोट होता है. Those who pass in the test, they get promotion. जोर से बोले. Hallelujah. आपको पता है जब आपका टीचर आपको कुछ सिखा रहा होता है क्लास में जितने मर्जी सवाल पूछते रहे आप. And if your teacher is teaching you something in the class, no matter how many questions you ask, जब एग्जाम शुरू हो जाएगा टीचर बोलेगा नहीं. but when there is an exam which starts, teacher will not speak फिर anything. टीचर आपको जितना मर्जी आप क्वेश्चन पूछते रहे आपको कोई नहीं कुछ नहीं बताने वाला कोई. No matter how many questions you ask, teacher will not answer. This is the time. ये समय है Talk to your Lord. अपने परमेश्वर से बात करें. परमेश्वर की आत्मा के संबंध में आए. Come into relationship with His Spirit. जैसे आप चर्च से बाहर निकलेंगे. The moment you move out of the church, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टेस्ट आपके लिए वेट कर रहे and there हैं. are 10 tests waiting for you outside. आप निकल के देखें बाहर आपके लिए आजमाइश आपकी वेट कर रही है. You move out of the house and you will see how you will come under test. आप प्रार्थना करके जब भी उठते हैं आपको सबसे पहले आप एक आजमाइश को फेस करते हैं. When you pray and stand up from the prayer, the first thing that you face is वो temptation. आजमाइश आपको कहीं बाहर से नहीं आती, कोई शत्रु लेकर नहीं आता, बल्कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं तेरे बीच में से ही, तेरे घर में से ही, तेरे परिवार में से ही, तेरे मोहल्ले में से ही एक ऐसा वंश पैदा करने जा रहा हूं, ऐसे इंसान को पैदा करूंगा जो तेरे लिए एक टेम्पटेशन के लेकर आएगा और वो तुझे परमेश्वर से दूर करेगा. And it is in the community that we live in, or the house that we live in, that God brings that person out there, which will make sure that he will have a temptation in your life. और वही परमेश्वर ने एक ये भी वायदा किया है. And the same God says this, another मैं promise. इज़राइल और यरूशलेम के बीच में एक ऐसा मुक्तिदाता पैदा करूंगा I will have a God that will come out of Israel, जो कोई उस पर ना it होएगा will not be destroyed, पर हमेशा की जिंदगी पाएगा. but will always everlasting life. नाश करने वाले बहुत हैं, There are many who wants to destroy you, जिंदगी देने वाला एक है. but this is one who wants to give you life. वो ही उसी के नाम से जितनी मर्जी लोग खड़े क्यों ना हो जाए आपको मारने के लिए, बर्बाद करने के लिए, पर यीशु नाम ही काफी है आपके No लिए. matter how many stand against you to kill you, but if God's name is bigger and more than And fear. एक बात समझे, अब्राहम को ये पता लगा कि परमेश्वर मुझसे कुछ बात कर रहा है. And Abraham knew one thing, that God is speaking to him. It says like this कि दूत ने कहा And the angel said, तुम अपने पुत्र को मत मारो do not kill your son, अथवा उसे किसी प्रकार की चोट ना पहुंचाओ. do not harm him. मैंने अब देख लिया I have seen that कि तुम परमेश्वर का आदर करते हो you honor God और उसकी आज्ञा मानते हो. and you obey his disciplines. मैं देखता हूँ कि तुम अपने एक लौते पुत्र को मेरे लिए मारने के लिए तैयार हो. And I know that you are able and ready to kill your own son. एक मिनट अपने हाथों को उठाएं. प्रेज़ कर. हालेलुया.
So Lift lift up your your hands. सर्वशक्तिमान जिंदा पिता परमेश्वर, तेरा जलाल यहाँ पर मौजूद है और परमेश्वर तू आज़ादी देने के लिए यहाँ पे मौजूद है। खुदावन ये कलाम तेरे बच्चों के जीवन में एक ऐसी जीत लेकर आए, खुदावन ये तमाम कौमों के सामने खड़े होकर तेरी मुनादी करने वाले बने, और परमेश्वर तेरा नाम अब से लेके हमेशा हमेशा तक ऊंचा होता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी बोलो हालेलुया, आमीन। Hallelujah. Amen. सभी बोलो आमीन। Amen. अपने पड़ोसी को बताओ कि तू हारा नहीं, तू जीतने वाला है। Tell your neighbor that you're not a loser, you're a अपने victorious. पड़ोसी को बताएं कि तेरी इस जंग में परमेश्वर तुझे जीत देने जा रहा In है। this fight, God is ready to give you a आप victory. जहां पर रुक चुके हो, यीशु मसीह आपको एक नई जीत देने जा रहा है। Where you are stopping, Jesus Christ is ready to give you a new परमेश्वर victory. के कलाम में लिखा है, अब्राहम को खुदा बहुत देर से जानता था, And God knew Abraham for a long time. पर वचन में साफ लिखा है कि खुदा ने फिर भी अब्राहम को बोला, And God even spoke to Abraham. अगर तू मुझसे प्यार करता है, If you love me, अगर तेरा मेरा रिश्ता है, if we have a तो relationship, तुझे मैं एक काम बोलता हूं, उसको पूरा कर। I will tell you one word, do that. अपने बेटे को लेकर जा, Take your son, उस child, पहाड़ पर लेकर जा and take him to that mountain और मेरे लिए कुर्बान कर दे। and sacrifice him for me. बोलो हालेलुया। Hallelujah. बहुत बड़ी बात है, It's a big thing. बहुत बड़ी बात है। It's a big thing. मेरे को एक बात, जब मैं कलाम पढ़ा था, मैं सोच रहा था, When I was reading the word, I was thinking, क्या खुदा को अब्राहम के दिल के बारे में पता नहीं था? did God knew the heart of Abraham? कई बार होता है ना, प्रभु जी तेनू पता ही है, मैं तेनू कितना प्यार करता है। And we say that, Lord, you know how much we will love you. प्रभु जी तेनू तो सब कुछ पता है, You know everything, Lord. पर ये पता होने से नहीं है। It is not by what you know. मैं आपको बता रहा हूँ, कई बारी आपको मांगने से नहीं मिलता, आपको आपके चाल चलन से और चलने से आपको वो बरकत मिलती है। Many times you don't get things when you ask, but when your character will fetch your blessings. अब्राहम के बारे में परमेश्वर को जरूर पता था, God knew Abraham, जिसकी वो खबर रखता है and He knew and know about him. उससे वो बात करता है। He speaks to them. बोलो हालेलुया। Hallelujah. और जिससे वो बात करता है, And when He speaks to you, उससे वो बहुत बड़े बड़े काम भी लेता He है। takes big things from him. पर उस बड़े काम को करने के लिए But to do those big works, पहले आपके लिए आजमाइश है, वो टेस्ट है, कौन इस टेस्ट को लेना चाहता but है। there is a test before that everything. But who wants to take that test? कोई भी इंसान विदाउट टेस्ट के बिना आपके जीवन में वो बरकत ठहरने नहीं वाली है। Without that test, your blessing will not stay in your अगर life. आप विदाउट टेस्ट से अपने परमेश्वर के नाम से वो गवाही देना चाहेंगे, तो वो गवाही कुछ पल के लिए होगी And सिर्फ। without test, we want to have a blessing. That blessing will be there for a short time. अगर आप टेस्ट में निकल कर गवाही देंगे, वो गवाही हमेशा के लिए होगी। And if you come out of the test and have a testimony, you will have the testimony forever. शद्रक मेशन अब्दनगो उस आग में जाने के बाद उनका जब मुंह खुला तो उनका मुंह कोई बंद नहीं कर पाया। And when they went to the fire, when they came out of the fire, nobody could shut their mouth. पर वचन में साफ लिखा है, अब्राहम को वो परमेश्वर अच्छी तरह जानता था। God knew Abraham very in a good परमेश्वर ने way. अब्राहम को इग्नोर किया यहाँ पर। God ignored Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम की बरकत को इग्नोर किया, He ignored Abraham's blessing. उसके बच्चे को इग्नोर किया, He ignored Abraham's son. उसकी आशीष को इग्नोर किया, He ignored Abraham's blessing, उसकी ताकत को इग्नोर किया। his power. परमेश्वर एक जानता है, जिससे आप ज्यादा लगाव करते, परमेश्वर उसे खींचने की हिम्मत रखता है। And God knows the person you love the most, God is able to pull them apart. जेड़े बिजनेस ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, तो बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ देख समझ लो कितना किते वो अड़चन खड़ी है अभी वहां पर। If those people who love business more than anything else understand that there is a trouble in business somewhere. कई लोग बच्चियों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। There are people who love kids so much. कई लोग ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁੰਦਾ। There is a sister who said, because of my children, I couldn't come to the church. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਚੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। And with children, you can go to Chuck E. Cheese. ब्रदर जी जाते हैं, बोलो नहीं जोर दी बोलो ना ਹੁਣ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁੰਦਾ? So you can go to Chuck E. Cheese with your child, but you cannot bring your child to the church. जोर दी बोलो हालेलुया। Hallelujah. उनको ये पता होता है कि भाई ये बच्चे मानते नहीं हैं। They know that children doesn't ask. मैं भैन ਨੂੰ ਕਿਹਾ, मैं कि बच्चों की गल छोड़ो, ਤੁਹਾਡਾ दिल नहीं मानता है। And I said, don't forget about children, but your heart is not अगर understanding. आपका दिल परमेश्वर के लिए है, If your heart is for the Lord, आपका पूरा परिवार बचाया जाएगा। your whole family will be
be saved. अब उसके वचन में लिखा है तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा. If God saves you, your whole household will अगर be saved. आपकी प्रार्थना आपका संबंध पवित्र आत्मा के साथ है, If your relationship with it is with the Holy परमेश्वर Spirit, का आत्मा तेरे घराने में काम करता है, God's Holy Spirit works in your तेरे बच्चों household, में काम करता in है, your children, तेरे घर तेरे बिजनेस में काम in करता your है. business. अगर एक बात समझे, अगर आप परमेश्वर को दिखाएंगे नहीं, If you don't show it to the Lord, लेट मी टेल यू, कोई दूसरा इंसान उड़ीक कर रहा है उसे देखने के लिए, and then there's somebody else waiting for you to just कोई to see ऐसी that. ताकत देखने के लिए उड़ीक कर रही है कि उनको देखे उन्हें नाश कर दे. And there's somebody who's waiting, who's just waiting for that for it to तभी come and destroy it. खुदावन के कलाम में पुराने ऐतनामे में लिखा है, In the Old Testament, अपनी सारी कीमती चीजें परमेश्वर के घर में लेकर bring आए, all the expensive things in your life, bring it to the house अपनी of the सभी Lord. बेस्ट चीजें परमेश्वर के घर में लेकर Get आए. all the best things in the house of the Lord. लेट मी टेल यू, आप चाहे जितना मर्जी स्टोर कर लें, No matter how much you store, जो परमेश्वर के घर में नहीं आता, those who doesn't come to the house of the Lord, वहां पर एक बहुत बड़ी भूचाल और वहां पर बहुत बड़ी बीमारी रुकने वाली है. and there is a disease and an earthquake there. लेट मी टेल यू, वहां पर एक अड़चन रुकने वाली There है. is a stoppage there. अपनी बरकतों को चर्च लेकर आया करें, Bring your blessings to the church. अपनी प्रार्थनाओं में अपने बच्चों को सामने लेकर रखें. In your prayer, bring your children in front वचन of में you. साफ लिखा है कि जब अब्राहम को ये पता लगा, When Abraham get to know this, immediately Abraham just packed his stuff. On that very moment, he told his two servants also, "Come with me. We have something to perform today." and उसी समय अब्राहम के चेलों ने पैक करा और बोला चलो जल्दी कुछ करना है. Immediately. उसी समय कितना? उसी समय. कि वो कहने चला गया, सारा गल सुन, मैं ना मैनू एक बहुत बड़ा काम आया He है, says, Sarah, wait, I have something big work to do. ते सलाह कर लईए ਆਪਾਂ मैं Let's घर think वाली about जाके, it with our husband. है ना, मैं सलाह कर अपनी घर वाली जाके, प्रभु जी फिर मैं तेरे को आऊंगा. Let me talk to my wife first and then I will come to you. कि वो अपनी घर वाली को दौड़े. Did he run to his wife? बोलो बोलो. अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला, अब्राहम किसके पास भागा? When God spoke this thing to Abraham, where did he run to? Very good, very nice, very good. किसके पास भागा वो? Where did he run to? वो उस चीज के पास भागा जिसके बारे में परमेश्वर बोल रहा है. He went to that thing to what God was speaking Let me tell you, about. जब हमें परमेश्वर ने बोला ये प्ले स्टेशन खेलना बंद करो, हम प्ले स्टेशन की तरफ भागे. When God says not to play that PlayStation, we ran to the हम PlayStation. प्ले स्टेशन की तरफ भाग के उसे पैक किया, उसको पैक करके बाहर फेंक दिया हमने. So we ran to it, we packed it up, we throw it out. Immediately आपका एक्ट होना बहुत जरूरी You है. must have an action after that immediately. Let me tell you, आप बंधन में, आप शैतान आपको बंधन में नहीं डालता, आप बंदवाई में अपनी मर्जी से हैं. It's आज. not the devil that puts you in bondage, it's you yourself comes into bondage. शैतान नहीं आपको मारता, आपकी जीवन में जौन सा नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो आपको मार रहा It's है. not the devil who's not killing you, it's the lack of knowledge that is killing you. परमेश्वर का आत्मा जब अब्राहम से उसने बात की, But God's Spirit, when he spoke to he Abraham, immediately act on it. उसी समय उसने काम करा उस उसी पे. वक्त वो उठा, Same time he stood up, वो किसके पास? इसहाक के पास he भागा. went to Isaac. उसको कहता इसहाक को तैयार किया जाए. Just make Isaac ready. बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया. जौन सी चीज को आप ज्यादा प्यार करते हैं, The thing that you love the most. इब्लीस भी उस पे नजर रखता है, परमेश्वर भी उस पे नजर रखता Devil है. also keeps his eye on that, and God also keeps his eye on that. परमेश्वर की सुनेंगे तो वो अच्छी चीज को, प्यारी चीज को आपसे लेगा नहीं. And if you listen to the Lord, He will not take that thing away from you. अगर आप इब्लीस की सुनेंगे, If you listen to devil, वो तुझे भी मारेगा, तेरे खानदान को भी he will मारेगा. not only kill you, but your whole generation. पर यीशु कहता है कि तो अगर तू मेरे बीच में बचाया जाए, तू बचेगा और तेरा घराना भी बचाया But जाएगा. Jesus said, if you're with me, that not only you, but your whole household और will be saved. ये परमेश्वर का वायदा आज भी हमारे जीवन में काम And the कर रहा same है. promise is working in our lives today. Immediately you need to act on it. उसी समय काम करना अगर है. बच्चों में लिखा है यूसुफ और यूहन्ना, The word says Joseph and John. उसी वक्त जोसेफ और यूहन्ना को भी जब परमेश्वर के बारे में पता लगा, यीशु मसीह के बारे में पता लगा, उसी वक्त उन्होंने जाल छोड़कर यीशु मसीह के पीछे होना शुरू हो गए. And the moment they found out about Jesus, they left their nets and followed him. बोलो हालेलुया. वो रुके नहीं, वो They did not stop. आपने बैप्टिज्म लिया है, You taken baptism. आप चर्च में आ चुके You हैं. have already come to the church. परमेश्वर का आत्मा हर किसी से बात कर रहा है. God's Spirit is talking to every one of If us. you are ready to speak something, अगर आप तैयार हैं बोलने के लिए, take out something which is close to you. कुछ अपने अंदर से निकाले जो आपके पास नजदीक है. जो भी अड़चन परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसकी बंदगी करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आपकी रुकावट बन रही है, पहले अपने जीवन से उसे बाहर निकालें. Any trouble that is taking you away from
from the Lord, you have to take that thing out of your जब तक life. वो चीजें निकलने नहीं वाली, आपकी जीवन में एक नेक्स्ट स्टेप और विश्वास का स्टेप आपके जीवन में बढ़ेगा Till नहीं. the time you don't pluck that thing out of your life, you will not move to next step of faith. Or वचन में साफ लिखा है, the word says, तभी खुदावन ने उसी वक्त उसे कहा, he said to him same time, दूत ने कहा तुम अपने पुत्र को मत मारो. do not kill your son. मैंने कहा जरूर था, I said it. परमेश्वर आपकी ओबीडियंस के ऊपर नजर रखता God है. is checking your obedience. Obedience is better than sacrifice. Obedience बहुत अच्छी चीज है sacrifice से. परमेश्वर आपको तोड़ने के लिए नहीं कह रहा है. God is not telling you to break. Let me tell you, अगर यीशु आपको उन चीजों को छोड़ने के लिए कह रहा है, परमेश्वर को बेहतर पता है कौन सी चीज आपके लिए है, कौन सी चीज आपके God लिए is नहीं है. telling you to break those things because God knows better what is good for you and what is not. अब ये समझे, जब एलिया अलीशा के साथ था And when Elisha was with Elijah, और अलीशा परमेश्वर के नाम से एलिया कोई हर एक बात को सुन रहा था, and by Elisha was listening to everything that Elijah was telling him, गलती पता क्या हुई है? the mistake was एलिया का दौरा मसा अलीशा पे था, that Elijah had double anointing what Elijah had, पर अलीशा का दौरा मसा लेने वाला कोई नहीं था. but there was nobody to take Elisha's double anointing. नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ? एलिया का दौरा मसा अलीशा पर था, Elijah's double anointing was on Elisha, पर अलीशा का दौरा मसा लेने वाला कोई नहीं था. but there was nobody to take Elisha's double anointing on them. अब ये बात समझ जाए कि परमेश्वर कई चीजों को रिजेक्ट कर रहा है आज. Understand that God is rejecting certain things. जब तक अपने शरीर को मारेंगे नहीं, इसे आप खत्म नहीं करेंगे, आत्मिक तौर पे आपका जन्म नहीं होने वाला Till है. the time you don't kill your body, you will not have a spiritual birth. खुदावा के कलाम में लिखा है, जो आत्मा से जन्मा है आत्मिक रीति से बोलता, आत्मिक तौर पे काम करता है. Those who are born of the Spirit always speak and work the spiritual way. परमेश्वर आपको ये बोल रहा है कि मत घबरा, तेरी गवाही बनने वाली तो बनेगी यीशु मसीह के नाम में. And if God says, don't worry, your testimony will make, so it will happen You in the know, name of some Jesus. people say, pastor या prophecy करते आपको कैसे पता लग जाता है? मैंने उसे देखा नहीं है, And I tell them, even if I don't see चाहे them, मैंने अभी सुना नहीं I है, haven't heard about it, पर ये विश्वास जो रखता है परमेश्वर उन्हें दिखाने की हिम्मत भी रखता है. but those who have the faith on the Lord is able to show that faith ये also. समझ जाए कि यीशु मसीह के नाम में जौन सा भी बीज आप बो दोगे उसमें हमेशा अच्छा फल लगेगा. And whatever you sow in the name of Jesus will always bear fruit. अपने घर जाके ये कह दिया करें कि अब परमेश्वर का बीज मेरे अंदर बो चुका है. And you must go to the house and the seed of the Lord is in me now. Immediately वो काम होना शुरू होगा. And immediately you will see yourself started working. जोर से बोलो हालेलुया. Hallelujah. कितने लोग अपने आप को मार नहीं रहे हैं आज, Many people are not killing themselves, बल्कि जो चीजें उन्हें कमजोर बना रही है उसके साथ ज्यादा रह रहे but the हैं, things that are actually making you weak and you are staying with them क्योंकि वो चीजें उन्हें पीस दिलाती हैं, because those things are giving you peace. उन्हें वो चीजें एक अच्छा महसूस करवा रही हैं. And those things give you a good feeling. बोलो हालेलुया. Hallelujah. बाहुबली देख के कितने लोगों को खुशी हुई थी? How many were happy when they watched Bahubali? देखो ना, हुन किसी ने नहीं बोला. Nobody मैंने ये पता will है कि speak. ने 25 बार की नहीं देखी है And I फिल्म. even know that how many of you watched it 25 times. बोलो 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 कोई नहीं बोलो हालेलुया. और जोर से बोलो हालेलुया. Hallelujah. कोई गल नहीं, देख ली फिर की होया, 25 बार ही देख लो, जो 26 बार स्टोरी तो सेम ही रहनी थी. Doesn't matter if you watch it many times, story remains the same. बोलो हालेलुया. Hallelujah. कंसेप्ट क्या है मैं बताता हूँ What आपको. was the concept? You feel good about this. आपको अच्छा लगता है. You know, you have made yourself in such a way, so if when you get into this, you will feel very fresh, you will feel very restored every time when actually you do that. जब आप देखते हैं आप refreshed और restored महसूस करते हैं. क्योंकि परमेश्वर का कलाम यही बताना चाहता है आज भी, That's what the word of God says. अगर आप परमेश्वर की आत्मा से रिस्टोर और फ्रेश होना शुरू हो जाए, If you get restored and refreshed by the Spirit of the कौन Lord, सा बंधन आपको बांध सकता है? what thing can have you as a कौन सी bondage? गरीबी आपको तोड़ सकती है? What poverty can kill Oh, you? let me tell you, आप बीमारियों पे हंसेंगे, बीमारियां भागेंगी यीशु मसीह You के will, नाम you will में. laugh on diseases and they will go. बदरुएं आपके नजदीक नहीं आएंगी, Demons cannot come near लेकिन you. आपके पास स्वीट प्रॉब्लम्स होंगी. You will have problems, sweet problems. आपको पता स्वीट प्रॉब्लम्स कौन सी You होंगी? know what are sweet problems? आप ये सोचेंगे कि खुदावन ने हेलीकॉप्टर दे दिया, अब लैंड कहाँ करें? You will have that, they give you helicopter, a way to land it. बोलो जोर दी.
ये आपकी आपकी स्वीट प्रॉब्लम्स होने ये होंगी, खुदावन ने आपको इतनी सारी चीजें दे दी है, अब आपको रखने की जगह भी नहीं है। That God gave you so many things, there is no space that you have, or a place you have to keep it. खुदावन का कलाम बोलता है कि तुम मांग के देख, रखने की जगह नहीं होगी। मैं इतनी आशीष, इतनी बरकत है, इतनी दौलत, इतना धन और इतनी 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 बरकतों से तुझे मामूर करने की हिम्मत रखता God says, हूँ। you ask and I will give you so much that you will not have a space to keep it. But protocol is this, that अपनी जीवन को आत्मा के साथ जोड़ें आज। Protocol is that you must add your life with the Spirit of the Lord. अगर आप संबंध के साथ, परमेश्वर के रिश्ते के साथ जुड़ And जाएंगे, if you get into the relationship with the Holy Spirit, आपको रोने की जरूरत नहीं है, you don't have to cry, गिड़गिड़ाने की जरूरत you don't नहीं even है। have to beg. Let me tell you, अब्राहम जिस जगह पे जाता था वहां पे खुशहाली होती थी। Wherever Abraham used to go, there was joy and happiness. अगर वो अब्राहम उजाड़ में भी है, उजाड़ में भी यीशु मसीह के नाम से बरकत है वहां Even पर। if there was a desert area, he was happy in the name of Jesus. आप कभी अकेले नहीं हैं, You are never alone. क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरा साथ तुझे कभी छोड़ेगा He नहीं, says, I will never forsake you. मेरा हेल्पर तेरे साथ साथ चलेगा। My helper is always with you. पर प्रॉब्लम क्या थी? अलीशा का दौरा मसा इसलिए लेने के लिए कोई नहीं था। But the trouble was the reason that there was nobody to take Elisha's double anointing, अनॉइंटिंग की भूख नहीं है उस किसी को। because nobody is hungry for anointing. अलीशा को भूख थी अनॉइंटिंग की। He was hungry. उसको एलिया ने भी बोला निकल जा यहाँ से, अब तेरी जरूरत नहीं है। Even Elijah said, get out of here, I don't need you. वो कहता चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं यहाँ से हिलूंगा He नहीं। says, no matter whatsoever happens, I will not move अगर from here. आपके पास वो ही भूख है, तो लेट मी टेल यू दैट कि आप वो इंसान हैं जहां पर आप जाएंगे यीशु मसीह के नाम में जीत होगी। If you have that same hunger that Elisha had, I'm going to tell you, wherever you go, you will have victory. Let me show you what happened on that time. क्या दूसरा हुआ? राजा 13 उसकी 20 और 21 में लिखा है, अलीशा मरा और लोगों ने उसे दफनाया। Elisha died and they buried him. अलीशा का मसा लेने वाला कोई नहीं था, अलीशा मर गया। There was nobody to take Elisha's anointing and he एक बार died. बसंत में मोआबी सैनिक का एक दल इजराइल आया। Now, bands of Moabites used to invade the land in the spring of the year. वे युद्ध में सामग्री लेने आए। And for the war, they came to pick up something. कुछ इजरायली एक मरे व्यक्ति को दफना रहे थे, And as a man was being buried, और उन्होंने सैनिकों को उस दल को देखा। and the mourning band was seen, इजरायलियों ने जल्दी में शव को अलीशा की कब्र में फेंका, and the man was thrown into the grave of Elisha. और वे भाग खड़े हुए। And as soon as the man touched the bones of जो Elisha, ही उस मरे व्यक्ति ने अलीशा की हड्डियों को स्पर्श किया, as the man touched the bones of Elisha, अलीशा की हड्डियों को जब छुआ उसे, a man who was dead was touched with Elisha's bones. समझे, एक बात को समझे, You should understand something. अलीशा के पास कोई ऐसा भूख रखने वाला नहीं था There was nobody that Elisha had no जो hunger, वो अदोरा मसा उसके अंदर ट्रांसफर कर सके, so that they can transfer that anointing to somebody, वो चीजों को वो ट्रांसफर कर सकता। so that they can transfer to somebody. अगर हम अपने शारीरिक तौर पे मर जाएं, तो लेट मी टेल यू, खुदावंत का अनॉइंटिंग हमारे बीच में नजर आने वाली है। If you die in your living body, that God's anointing will be seen in आपको our पता life है, मुर्दा also. जो इंसान होता है उसकी कोई रिएक्शन नहीं होता। A dead man is a man who doesn't have no reaction. अगर डेड मैन को जितनी मर्जी गालियां निकाल दो, जितना मर्जी बुरा बोल दो, उसका कोई रिएक्शन नहीं है। And the dead man, nobody, if you abuse him, he will have no reaction. एलिया ने जब बोला तो एलीशा ने इसलिए उसकी बात का बुरा नहीं माना। When Elisha said him, he did not felt bad about it. शरीर पे तो गाली नहीं लगती सी ओदे, They was not even saying anything to the body. शारीरिक तौर पे तो मरा हुआ था He was एलीशा, dead by the body, Elisha, वो आत्मिक तौर पे जिंदा but in the था। spiritual way, he was still living. ओ somebody बोलो हालेलुया। Hallelujah. अगर आप आत्मिक तौर पे जिंदा हैं आज, And when you're living in a spiritual way, आप आत्मा की बात सुनेंगे, you will hear what the Spirit of the Lord आपकी says. मुर्दा ख्वाहिशें जिंदा होने वाली All हैं। the dead desires of your life will come back to आप life. उनके लिए प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के नाम में जिंदगी होगी And वहाँ whenever पर। you pray for somebody, they will have life. वचन में साफ लिखा है कि उसी व्यक्ति ने एलीशा की हड्डियों को स्पर्श किया, मरा व्यक्ति जीवित हो उठा And then- और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। They touched the bones of Elisha, and the person who was dead stood back on the feet. Somebody बोलो हालेलुया। Hallelujah. मरे हुए अलीशा की हड्डियों को छूने से भी एक इंसान जिंदा हो गया। See, a man came back to life just by touching the bones of Elisha. जो इंसान शारीरिक तौर पे मरा हुआ है, People who are dead in spirit or in the bodily way आत्मिक तौर पे जिंदा है, and is alive in the spiritual way, आत्मिक तौर पर वो अपने परमेश्वर से एक संबंध में है, रिश्ते में and है, in the spiritual way he has a relationship with the Lord. वो मर कर भी मरता नहीं है। Even if he's dead, he will not be वो declared dead. जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. अलीशा कहता है इससे अच्छा तो मर जाते।
Elisha said, it's better for you to die. अपने शारीरिक अभिलाषाओं में मर जाते, You should die in your desires or अपने fleshly शारीरिक desires. तौर की जितनी स्ट्रेंथ में मर जाते, You should die in your strength as a flesh. मेरा मसा तो ट्रांसफर हो जाता तुम At least में, my anointing can be transferred to मेरा you. मसा तो तुम्हारे अंदर आ जाता. My anointing can be in you. जो शारीरिक तौर पे चलता है यीशु मसीह को कभी नहीं अपना पाएगा. And those who walk in bodily way or in fleshly mindset can never have Jesus. अगर खुदा आज आपको इग्नोर कर रहा है, And if God is ignoring you today, आपको बुरा इसलिए लग रहा the है, reason you're upset about it, you are standing in flesh. क्योंकि आप आज भी उस शरीर में खड़े आप हैं. आज भी उसी फ्लैश के बीच में You हैं. are still in the flesh. क्योंकि कईयों लोगों ने प्रार्थना करनी बंद कर दी है. Many people have actually stopped परमेश्वर praying. ने इग्नोर कर दी प्रेयर, तो उन्होंने भी परमेश्वर को इग्नोर कर If दिया. God has ignored the prayers, you have ignored God. और आपने परमेश्वर को जब इग्नोर कर दिया तो इसमें आपका नुकसान है, परमेश्वर का कोई And when नुकसान you नहीं है. ignore God, it's your problem, it's not His problem. Do not ignore God. परमेश्वर को ignore मत करें. Let me tell you, आप खड़े रहें, अड़े रहें, अलीशा की Stay. तरह आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम Stay में. there where you are in the name of Jesus, you will win as Elisha won. Let me tell you, अलीशा ने अपनी जिंदगी में जो कुछ पाया, उसने अपने विश्वास, अपने स्टैंड की वजह से पा लिया उसने. Whatever Elisha got it by his faith and stand. ब्रदर जी, जिन्ना मर्जी पावे लोकी तानु माड़ा कहन, चंगा कहन, तानु बुरा कही जान, जो मर्जी हो, अगर आप खड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, वो लोग शर्मिंदा होंगे. No matter whatever people say to you, if you stand and stuck and stay there, those people will be ashamed. आपकी बदौलत लोग बचाए जा रहे हैं. Because of you, people are being delivered and क्योंकि saved. लोगों के कहने से आप अपने आप को तोड़ नहीं रहे हैं. Because what they are saying, you're not breaking yourself. और लोगों के कहने से आप अपने आप को रोक नहीं रहे And you're हैं. not stopping yourself because they are बहुत saying. सारे लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की Many है. people stopped me, tried to बहुत stop me. सारे लोगों ने मुझे बुरा बुरा बोलने की कोशिश की है. And many people said bad about me. आज भी मैं आशीषित हूँ यीशु But मसीह के still नाम I'm में. blessed in the name of Jesus. आप जो मर्जी सोच लें, पर आपके सोचने से काम नहीं होता, पर आपके No विश्वास matter करने से वो what काम you होगा. think will not happen, but it is by your faith that things will happen. कितने लोग ये समझ चुके हैं कि परमेश्वर की इग्नोरेंस मेरे लिए बरकत का कारण है. How many of you understand that God's ignorance is actually a part of blessing? अगर परमेश्वर आपको इग्नोर नहीं कर रहा है, If God is not ignoring you, परमेश्वर टेस्ट कर रहा He है. is testing you. लेट मी टेल यू, अगर आप परमेश्वर आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया उसने, What if God has started ignoring you? तो वो परमेश्वर आपको देखना चाहता है कि आप अपनी पुरानी चीजों के पीछे दोबारा तो नहीं भाग रहे. God is actually looking at you. Are you still running to those old things that you used to stay with? कितने लोग कहते चलो ये तो ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ. Many people say that it was better, at least we were getting something. ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ. And out here that we haven't got anything. लेने के लिए परमेश्वर पहले आपको परखता जरूर है. To give you something, God tests you first. कितने लोग लेना चाहते परमेश्वर से How आज? many of you want something from the Lord? कितने लोग बरकतों के पीछे और कितने लोग अनॉइंटिंग के पीछे How many हैं? of you are actually after the blessing, or how many are after the anointing? Let me tell you, अनॉइंटिंग के पीछे भागें, दुनिया की सारी चीजें आपके पीछे होके Run after the मिलेंगी. anointing of the Lord, you will have everything of the world in you. खुदावंद का मसा आपको बचाने वाला है. God's anointing is about to save you. आपकी भूख परमेश्वर का मसा होना चाहिए. God's hunger should be your अगर anointing. परमेश्वर का मसा वो भूख बन चुका है, If God's hunger is that anointing or that hunger or the कौन thirst, परमेश्वर के प्यार से तुम्हें जुदा कर सकता who है? can separate you from the love of God? कौन खुदावंद की इच्छाओं से तुम्हें जुदा कर सकता Who है? can take you away from the desires of the मैं Lord? आपको ये बोलता हूं कि जहां भी आप बैठे रहेंगे, जहां पे आप खड़े हो जाएंगे, जहां पर भी आप परमेश्वर के नाम में जो कुछ भी इस जमीन पे बांधोगे, आसमान पे बांधा जाएगा. Whatever you do in His name or whatever you bind on this earth will be bound in heaven. कल बारिश नहीं हुई है. It was not raining yesterday. बोलो बोलो, कितने लोगों को कॉल आया था. Many people called me. अब मैं माने कि मैं और सकीना बाहर थे. We both were outside हम बाहर थे और हमने बाहर हम दोनों ने हाथ भर के एक बात बोली. and we both held our hands and Just said one छोटी सी thing. प्रार्थना की. Just small prayer. ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है. You don't have to cry a lot. मैंने ये बोला, यीशु मसीह के नाम में बारिश रुक जाए, कभी होए ना And I उस वक्त. stopped the rain in the name of Jesus. Let it not happen. मैंने उनको बोल दिया था, जिनके फोन आते हैं, मैं क्या रोन दी लोड नहीं है, मंगन दी लोड नहीं है, ये बारिश खुद शर्मिंदा होगी And I यीशु मसीह said, के you don't नाम. have to cry. The rain will actually shame of itself. वो शर्मिंदा हुई यीशु मसीह के And I नाम. was ashamed. हमने बैप्टिज्म किए, We did baptism. लोग बचाए गए हैं. People were saved. जीत यीशु मसीह के नाम It से was हुई God है. who got the victory. Let me tell you that this is the power that we have in Christ ये today. परमेश्वर की सामर्थ है जो हमारे अंदर है यीशु मसीह के द्वारा. Ask and seek that kind of anointing from the Lord वो today. ढूंढे वो मिलेगी आपको. Let me tell you that आज किसी की ignorance से अपने आप को तोड़े ना. Do not break yourself because of somebody's किसी के ignorance. बोलने से आप रुके ना. आज Do not stop if somebody says you आपका something. विश्वास टूटे ना. आज Let your faith not break. आज कहे परमेश्वर, आज भी मैं तुझसे सीखना चाहता हूँ. Lord, I still want to learn from you. अलीशा तड़पता रहा. Elisha was Jesus thirsty was for मेरा the मसा लेना
लेने Think वाला about कौन that. है? जिस प्याले से मैं पीता हूँ उस प्याले से कौन पी सकता The है? cup that I am drinking, who will drink? आज यीशु मसीह भी आज इसी वक्त इस कलीसिया में खड़े होकर आपसे बातचीत कर रहा है. And Spirit of the Lord Jesus Christ himself is talking to you and asking you. अगर परमेश्वर का आत्मा आपको इग्नोर कर रहा है, If God's Spirit is ignoring अगर आपका you, पास्टर आपको इग्नोर कर if रहा your है, pastor is ignoring you, खड़े रहें, अड़े रहें. stand there. आपकी जीत होने वाली यीशु मसीह के नाम You will में. have victory in the name This of is the Jesus. time of a test. ये वो टेस्ट का टाइम है. Let me tell you, ये टेस्ट को ले लें आप. Have that test in your life. जब मैंने सेवकाई शुरू की 2 साल तक मुझे टेस्ट में रहना पड़ा. When I started my ministry, I had to be in test for 2 My years. parents didn't want to talk to me on that time. मेरे माँ बाप मुझसे बात नहीं करना 2 चाहते थे. साल तक मुझसे बात नहीं की They उन्होंने. didn't speak to me for 2 years. 2 साल तक मैं अड़ा रहा और खड़ा रहा. And I stood for 2 years. अड़ा रहा और खड़ा रहा. I stood there for 2 मैं years. डट गया वहां पर. And I was stuck there. मैं कहा जीत देगा तो यीशु के नाम से जीत होएगी. If I will have victory, I will have it in the name of Jesus. कुड़कुड़ाना बंद करें और डटे रहें. Let's यीशु not मसीह के नाम में जीत होने murmur, वाली है. let's stay there in the name of Jesus. डटे रहें. परमेश्वर के नाम से आप कभी भी हार नहीं पाएंगे. Stay there, you will never lose in your ये life. ना कहे मेरे घर वाली कितना था, मेरा घर वाला कितना था, मेनू परिवार कितना था. Let Do not even it say, be. oh, the kind of wife you have, the kind of husband of my house is like that. Let me tell you, stop saying all those things. वो सारी चीजें कहना बंद करें. खड़े रहें यीशु मसीह के नाम में. Stay there in the name of Jesus. आपके थ्रू परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा Through है. you, God will do amazing things. जितने लोग खुदावंत का मसा पाना चाहते जल्दी से अपने पैरों पे खड़े People हो who जाएं. want to have the anointing of the Lord, stand up on your feet. If you are really here for the fresh anointing of the Lord, अगर आप चाहते हैं उसके पूरा fresh मसा के if लिए, you are really here to encounter with such kind of the anointing that God has given to Elijah and Elisha, अगर आप यहाँ पे हैं परमेश्वर की anointing लेने के लिए जो इलाइशा और एलिजा पे थी, अपने हाथों को उठाएं और आप Lift up your hands. Say to God, God, खुदावन मुझे वो दोरा मसा दे. God give me that anointing. Let me tell you that अगर वो दोरा मसा आपके जीवन में आ रहा है, If that anointing you're receiving in your life, अगर परमेश्वर का मसा आपके जीवन में उतरेगा, and if God's Spirit will land in your life, परमेश्वर का anointing, परमेश्वर का आत्मा आपको कई चीजों से आज तोड़ेगा. वो God's Spirit and anointing will break you in so many things. क्या आप वो सभी चीजें करने के लिए तैयार हैं जिससे Are परमेश्वर खुश नहीं are you है? ready to all those things that God is not happy about? अगर वो आप सभी चीजों को निकालें यीशु मसीह के नाम में, And if you pluck them out of your life, अगर कहें यीशु मसीह अगर तुझे पसंद नहीं मैं निकालता हूँ उसे, that I'm not happy and I'll take that away, कहें खुदावन ये नफरत को निकालता हूँ यीशु I will मसीह take के नाम that hatredness out of that, में. ये लड़ाई झगड़ा यीशु के नाम से I will निकले remove that fight away, और खुदावन यीशु मसीह के नाम में ये ना समझी मेरे जीवन से निकले. and I will even take that stupid things out of my life. I'm gonna do exactly what the Spirit is going to tell me. मैं today. वही करूंगा जब परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात सभी करती सभी है. एक मन हो जाए. अपने हाथों को उठाएं और आप Let's all stand. हालेलुया. अपने हाथों को उठा के कहीं परमेश्वर से हालेलुया. आज कहीं परमेश्वर आज मैं तेरा मसा पाना चाहता हूँ. Say to God, God, I need your fresh anointing this very moment. जितने लोग उसकी रूह से मामूर होते हैं उन्हें कोई भी उदासी तोड़ नहीं सकती. हालेलुया. ये परमेश्वर का घर है. खुदावन की खुशी यहाँ पे मौजूद है. आप बोले बोलो 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 कि खुदावन तुम मुझसे वो सारी चीजें ले ले. Take out each and everything which you do not like. Take out everything which you do not like in my life. Whatsoever it would be. Whatsoever it would be, though I preach, though I sing, though I proclaim, though I prophesy, today I am going to take out everything which is not from you. Say to God, God, I'm going to take it out which is not from you. Hallelujah. Let me tell you that your test starts now. If you are ready, आप अगले इंसान होंगे गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में. आप वापस आएंगे और खुदावंत के मस्सा से वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में. आप कभी टूटेंगे नहीं, आप कभी ठहरेंगे नहीं. ये खुदावंत का बल है. हालेलुया. God, I really poured that presence. I allow your spirit right now. I allow your spirit right now to break every chain. Break every chain, God. If they are connected to something which is so bad for them, God, I command to leave from their life right now. यीशु तेरे नाम से वो लालच निकल जाए, वो पैसे की भूख निकले, वो दुनिया के लालच इनके जीवन में कभी काम ना करे. परमेश्वर तेरे मसा का भूख रखने वाले बने अभी. हालेलुया. खुदावन तेरे कलाम का भूख रखने वाले बने. हालेलुया.
परमेश्वर आई कमांड दैट खुदावन ये भरे 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 यीशु मसीह के नाम में और कभी भी शर्मिंदा ना हो. हालेलुया. Be with them, God. Be with them. So let your kingdom come. Let your will be done in Jesus' mighty name. So we will say, Amen. अगर आपका आमीन बहुत ऊंचा है तो समझ जाए परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है. बोलो हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जितने लोग अपने जीवन में खुशी और विक्ट्री रिसीव करते हैं, जोर से ताड़ी बजाएं यीशु मसीह के नाम में. सबूत ये है कि आज भी आप खड़े हैं और आज आप अभी भी अड़े हुए हैं. परमेश्वर का मसा आपके जीवन में आएगा. आप कभी हारेंगे नहीं. हालेलुया.